Assalamu alaikum students. This is the second part of Indus Valley Civilization, Science and Technology. The people of the Indus Valley Civilization achieved great accuracy in measuring length, mass, and time. They were among the first to develop a system of uniform weights and measures. A comparison of available objects indicates large scale variation across the Indus territories. Their smallest division, which is marked on an ivory scale found in Lothal in Gujarat, was approximately 1.704 mm, the smallest division ever recorded on a scale of the Bronze Age. Harappan engineers followed the decimal division of measurement for all practical purposes, including the measurement of mass as revealed by their weights. Dholavira's sophisticated water reservoirs are evidence for hydraulic sewage system in the ancient Indus Valley civilization. These are the images of their science and technology. You can see the wheel used for pot making and tools. Writing skills. There was a single state given the similarity in artifacts, the evidence for planned settlement, the standardized ratio of brick size, and the establishment of settlements near sources of raw material. There was no single ruler but several. Mohenjo-daro had a separate ruler, Harappa another, and so forth. Harappan society had no rulers and everybody enjoyed equal status. Here you can see their writing skills, arts and craft. Various sculptures, seals, bronze vessels, pottery, gold, jewelry, and anatomical detailed figurines in terracotta, bronze, and steatite have been found in at excavation sites. A number of gold, terracotta, and stone figurines of girls in dancing poses reveals the presence of some dance form. Maybe it is the part of religion. These terracotta figurines include cows, bear, monkeys, and dogs. These are arts and craft used by them. स्टोन स्कल्पचर, बहुत सारे हड़प्पन पीरियड के स्टोन से बने हुए स्कल्पचर्स मिले हैं जिनमें एक बियर्डेड मैन है जो कि फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग में भी ये प्रीस्ट हो. इसके अलावा बुद्धा के स्कल्पचर्स मिले हैं, एनिमल्स के मिले हैं और इस तरह के उनके पोस्चर हैं जैसे मेडिटेशन में हो. इसके अलावा और एनिमल्स जैसे मंकी, डॉग्स, शीप, कैटल्स वगैरह के स्कल्पचर्स मिले हैं जो कि वर्शिप के लिए भी यूज़ होते होंगे, रिलीजियस पर्पसेस के लिए भी या फिर शौकिया तौर पर भी यूज़ किए जाते होंगे. इसके अलावा जो कॉर्ट्स वगैरह के अंदर एनिमल्स यूज़ होते हैं उनके भी स्कल्पचर्स मिले हैं. इस स्लाइड में आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे बुद्धा विद 3 हेड्स का स्कल्पचर है और राइट साइड पे वो बियर्डेड मैन का है. पॉटरी. इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर बहुत मॉडर्न, बहुत रिच पॉटरी मिली है. ना सिर्फ ये कि इसकी टेक्निकल वे है इसको बनाने का, बल्कि ये बहुत रिफ़ाइन और बड़ी डेवलप्ड है. मुख्तलिफ़ साइज़ में और मुख्तलिफ़ थिकनेस के हिसाब से और मुख्तलिफ़ शेप के पॉट्स वगैरह मिले हैं जो कि डोमेस्टिक लेवल पे भी यूज़ होते हैं. इसके अलावा प्रोफेशनल लेवल पे भी यूज़ होते हैं. शॉप्स वगैरह के अंदर स्टोरेज के लिए भी बड़े बड़े ड्रम टाइप के जो है वो टेराकोटा के अंदर बने हुए पॉट्स मिले हैं. टेराकोटा एक टेक्निक है जिसमें मड से एलिमेंट्स को, ऑब्जेक्ट्स को तैयार किया जाता है. समटाइम्स स्कल्पचर्स को या पॉट्स को या ब्रिक्स वगैरह भी तैयार होती हैं कच्ची मिट्टी से बनाने के बाद. उन्हें एक हाई टेम्परेचर पे टेक्निक के साथ बेक कर लिया जाता है जिससे वो बहुत हार्ड और बहुत रिफ़ाइन हो जाती हैं और सॉलिड हो जाती हैं, परमानेंट हो जाती हैं. पॉटरी के कच्ची मिट्टी के बर्तन के ऊपर ही नक्शो निगार बना लिए जाते थे, पैटर्न्स क्रिएट कर लिए जाते थे, कलर्स लगा दिए जाते थे जो कि बेक होने के बाद उसके ऊपर परमानेंट हो जाते थे.
फर्स्ट टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन में बेक्ड पॉटरी जो है वो स्टार्ट की गई। इससे पहले जो पॉटरी थी वो स्टोन्स और वुड वगैरह के अंदर बहुत ही सिंप्लीफाई फॉर्म में इजिप्शियन और मेसोपोटामियंस के अंदर मौजूद थी। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं डिफरेंट शेप के पॉट्स। सील्स, हड़प्पन seals, copper tools, rim of jars, copper and terracotta tablets, jewelry, bone rods, signboards are engraved with various signs or characters. Recent studies suggest that the Harappan script consists of about 375 to 400 signs and that it was written from right to left. The Harappan were literate people. However, the script has not been uh, deciphered as yet. It is believed that they used ideograms or graphic symbols or character to convey the idea directly. Typical Indus inscriptions are short and are no more than 4 or 5 characters in length. We do not know about the language they spoke. Those scholars believe that they spoke Brahui, a dialect used by Balochi people in Pakistan today. However, further research alone can unveil the mystery and enable us to know about the Harappan scripts. These are the symbols of different types and shapes of seals. कुछ देखें अंदर की तरफ खुदी हुई हैं, कुछ बाहर की तरफ उभरी हुई बनी हुई हैं, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, राउंड में, और काफ़ी थिक हैं, ब्लॉक टाइप। मुख्तलिफ मटेरियल्स के साथ बनी हुई हैं, कुछ मेटल्स में हैं, कुछ स्टोन्स में हैं, और कुछ मुख्तलिफ कॉपर वगैरह के साथ हैं। कुछ वाइट ये मटेरियल है जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे यूज़ हुआ है, उसमें बनी हुई है। ये वर्शिप के पर्पज़ से भी यूज़ होती थी और सिग्नेचर मार्क के तौर पर भी होती थी, और मे बी कोई गॉडेस वगैरह को भी या गॉड वगैरह को भी आइडेंटिफाई करती हूँ। Our limited knowledge about their dress style comes from the terracotta figurine and stone sculptures of the period. Men are mostly shown wearing a dress wrapped around the lower half of the body with one end worn over the left shoulder. एक चादर सी अपने गिर्द बांध कर उसे लेफ़्ट शोल्डर के ऊपर डाल लेते थे, और जो फीमेल हैं उनकी स्कर्ट टाइप और साड़ी की तरह की और फॉल्स के साथ जो हैं वो ड्रेसेस मिले हैं। ये ड्रेसेस उनकी फिगरीन्स में यूज़ हुए हैं, उनकी पेंटिंग्स में यूज़ हुए हैं, उनकी सील्स वगैरह के ऊपर बने हुए हैं। ये आप देख सकते हैं उनका ड्रेस स्टाइल। बाकी लोगों की तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो अपने आप को बहुत सजाते संवारते थे, और ना सिर्फ औरतें बल्कि मर्द भी हेयर ड्रेसिंग को फॉलो करते थे। बहुत अच्छे अच्छे हेयर ड्रेसेस बनाते थे और ऑर्नामेंट्स भी पहनते थे। दोनों सेक्सेस जो हैं वो ज्वेलरी को यूज़ करती थी, और ये ज्वेलरी मुख्तलिफ प्रीशियस स्टोन्स के साथ, जैसे लेपिस lazuli और जेड अगेट वगैरह और कैर्नेलियन इनके साथ बनाई जाती थी, कॉपर और सिल्वर और गोल्ड वगैरह के साथ, और मेल में और फीमेल दोनों में यूज़ होती थी। इसके अलावा आइवरी पाउडर वगैरह और ये कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता था। इसके अलावा हेयर ड्रेसिंग स्टाइल्स जो हैं वो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं। ज्वेलरी के स्टाइल्स और हेयर ड्रेस वगैरह, बुधा के सर पे भी बालों को खूबसूरत तरीके से कर्ल देकर बनाया गया है, और ये बाकी फिगर्स के अंदर भी आप देखें पीछे से जूड़े की तरह एक गोल शेप दे के बनाया गया है, और सर के ऊपर भी। मेटल को वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर यूज़ करते थे, जैसे पॉटरी हो गई, जैसे डिशेस वगैरह में, और सिल्वर ऑर्नामेंट्स वगैरह में, सब में यूज़ होती थी। कॉपर के यूज़ किया जाता था। इस स्लाइड में आप देखें मेटल के साथ ये डिफरेंट पॉट्स बने हुए हैं, पॉटरी में यूज़ हुआ है, व्हील्स वगैरह बने हैं, कॉइन्स बने हैं मेटल के साथ, और एनिमल्स बने हैं,
सील्स बनी हैं, स्कल्पचर्स बने हैं। इन सब में मेटल को वो मैश करना जानते थे, दो मेटल्स को आपस में मिक्स करने की टेक्निक मालूम थी और उसको गर्म करके मुख्तलिफ मोल्ड के साथ बना लेना, ये सारी टेक्निक्स वो जानते थे। इसलिए मेटलर्जी में काफ़ी एक्सपर्टीज़ थी उनकी। फिर आ जाते हैं उनकी बरियल की तरफ कि वो अपनी डेड बॉडीज़ को दफनाते कैसे थे। एक्सकवेशन के दौरान बहुत सारी ऐसी ग्रेव्स मिली हैं जिसके अंदर स्केल्टन मौजूद है और उसके साथ पॉट्स और ज्वेलरी वगैरह भी मौजूद है। इसका मतलब ये है कि वो लाइफ आफ्टर डेथ पे के कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते थे। इसलिए उनका ख़्याल था कि दोबारा जब रूह आएगी तो उसको चीज़ें चाहिए होंगी। तो वो लाइक इजिप्शियंस ये कॉन्सेप्ट वहीं से ट्रैवल होके आया है। इस तरह से वो अपनी बहुत सारी उस डेड बॉडी की जो प्रीशियस किस्म की चीज़ें होती थी वो उसके साथ दफना देते थे। इसमें आप देख सकते हैं मुख्तलिफ ग्रेव्स के साइजेस, उनको दफन करने का तरीका और उसके साथ ये देखें लेफ़्ट साइड पे ऊपर पॉट्स वगैरह पड़े हैं। Thank you students for listening.